हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक्स विद रोनित। और आज हमारे साथ है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन डॉक्टर नोएल ब्रिटो। सो वेलकम टू अवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू दैट यू केम हियर इन अ पॉडकास्ट सर। Thank you. My pleasure, only to be here. सर थैंक यू to have सर। a talk with you, and I'm excited rather. सर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन आम लैंग्वेज में लोगों को बता सको तो। Yeah, very good question for Aam Aadmi. Anesthesiologist, Yeah. Anesthesiology Yeah. is a science of relief of pain, Anesthesiologist जो बोलते हैं. Like a person who knows the science of anesthesia is anesthesiologist. Not anesthesia, for your kind information. I'm not an anesthetist. I'm an anesthesiologist. Okay. Very important concept. बहुत important concept रहता है ये anesthesia. Is to relieve the pain of the patient during surgery. और बाद में आपने बोला critical care physician. Yeah. The pioneers of critical care physician were anesthesiologists actually. Yeah. Formerly it was only anesthesiology. Then it became anesthesiology and critical care. Today latest it is anesthesiology, critical care and pain. हाँ. We take care of the pain management of the patient. हाँ, pain management. Road traffic accident, Yeah. trauma, brain injury, Mm-hmm. हार्ट अटैक, स्नेक बाइट, पॉइजनिंग, स्ट्रोक, इनको ट्रीट करने वाला डॉक्टर रहता है वो क्रिटिकल केयर फिजिशियन रहता The first doctor when you approach the hospital, Yes. that will be the critical है. care. क्रिटिकल केयर फिजिशियन. नाउ क्रिटिकल केयर फिजिशियन इज बोर्न आउट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट. यानी मैं एनेस्थीसिया किया है तो आई टेक ए स्पेशल ट्रेनिंग इन क्रिटिकल केयर. वन. सेकंड इज ए physician also can get trained into critical care medicine. Now the job of a critical care physician is three important things I can tell you. The three fundas we talk on critical care medicine is A, B, C. Simple. A, B, C. Not A for apple, B for bat or C for cat. A is airway. Airway. आपका airway secure करना. Airway बोले तो your nose this ये secure करना. Airway. You can breathe, You can breathe in, breathe out. Airway control. Airway. Second is breathing. He should breathe in and out, in and out. And third is circulation. Blood circulation. If you manage these three, that's a life-saving maneuver of any critical care physician. सर एनेस्थीसिया के बारे में आप और क्या बता सकते हैं? You know what is anesthesia? Anesthesia is relief of pain. हाँ. Actually, it comprises of four components. Actually, four. One is analgesia. Analgesia बोले तो pain relief. Okay. Second is amnesia. Amnesia बोले तो you should not have memory of the event that is happening between the surgery. तो first is analgesia, pain relief. Amnesia is. Third is attenuation of sympathetic nervous system. मैंने आपको थोड़ा चिमटी लिया तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा. तुमको थोड़ा दर्द हुआ तो हार्ट रेट बढ़ता है, तुम देखो. बिल्कुल. तुमको दर्द होता है, रिफ्लेक्स. Okay. That is one component of anesthesia. And fourth is muscle relaxation. ये चार कंपोनेंट जब एक करते हो तब एनेस्थीसिया पेशेंट को हम देते हैं. It's a science, Ronit. It's a marvelous science and we have done amazing work in the last 50 years. इतना massive. I remember when I was studying in 1995, things were very, very naive, Today they are so advanced with monitoring system, with workstation, and it's become very safe. डॉक्टर नोएल, जब भी हम किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में तो सबसे पहले ये बताते हैं कि एडमिट होने के बाद लाइक 10 to 12 आवर्स पहले यू डोंट ईट एनीथिंग या फिर पानी अगर आप थर्स्टी हो तो सिप करके वाटर पियो. ट्रू. सो व्हाई लोगों को ये पता है कि डॉक्टर ने बोला है बट इसके पीछे साइंस क्या है सर? Absolutely. Things have changed now. You have to be, that is called nil by mouth. यानी मुंह से कुछ खाना नहीं ले सकते तुम. If you are undergoing general anesthesia, solid food you should not have 8 to 10 hours, 8 to 10 hours. Then clear liquids you can have up to 6 hours. Things have changed lots, Formerly when I was studying it was 12 hours. Now it is up to 8 hours. Why? Because what happens when we give anesthesia, ये sphincter जो रहता है, gastroesophageal sphincter जो होता है कभी कभी open हो जाता है वो. तो if a patient is full stomach, he can vomit. During the surgery? During surgery, like induction or during surgery. He can vomit and aspirate. Lungs में चला जाता है. To prevent that, you have to be nailed by mouth. But a lot of revolution has happened in the last 15 years,
where the time duration from when I was studying it was 12 to 15 hours. Now it is 8 hours. For clear liquid, 6 hours, you know. Okay, there is a difference for. There is a lot of revolution. My newer youngsters will be in a better position to tell you what are the protocols and guidelines. So mortality, you don't have to fear for anesthesia. Sir, as you said, anesthesia is very safe. Okay, but what are the risk factors before कि मतलब anesthesia देने से पहले patient को risk factor क्या होता है? In today's era, आज के लिए में anesthesia has become very safe. But before giving anesthesia, the anesthesiologist वो पेशेंट से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, पूरा हिस्ट्री लेता है पेशेंट का, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, कुछ रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी है, एयरवे एसेस करते हैं. एयरवे बोले तो जबड़ा कैसा है, मिसिंग टीथ है कि नहीं, क्योंकि हमको एयरवे सिक्योर करना पड़ता है ना, ये सब असेसमेंट होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द असेसमेंट हमारा ग्रेडिंग रहता है, उसको ए से ग्रेड्स बोलते हैं. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी ग्रेडिंग रहता है, ग्रेड 1 2 3 4 5, यू नो, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड रिस्क असेसमेंट होता है. फिर पेशेंट को हम समझाते हैं, इमरजेंसी है तो वी हैव टू टेक द पेशेंट. अगर इमरजेंसी है कि ट्रॉमा है, ऑपरेशन करना है, तो कितना भी रिस्क लेके हमको करना पड़ता है. तो असेसमेंट में हम ग्रेड करते हैं पेशेंट को, ग्रेड ए से 1 A 2 3 4 5 ऐसा. लेकिन अगर प्लान्ड केस है कि आपका जैसे हिस्टेक्टॉमी है, कुछ प्लान्ड सर्जरी और आपका बीपी ज़्यादा है या हार्ट का इश्यू है, तो वो इश्यू पहले एड्रेस करते हैं हम. ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, खून बॉडी में ऑलरेडी कम है तो उसको इम्प्रूव करते हैं, डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं. तो सारी चीज़ें कंट्रोल करके फिर एनेस्थीसिया देते हैं. दैट इज फॉर प्लान्ड केस. इमरजेंसी तो वी हैव टू टेक द रिस्क एंड गो अहेड. बट द मेन पॉइंट इज कि अगर आप कोई सर्जरी के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू टेल द डॉक्टर कि आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या क्या है, डॉक्टर को बताना जरूरी है. 100%. दैट इज कॉल्ड प्री एनेस्थेटिक असेसमेंट. और मेरी सलाह है पेशेंट को, डोंट हाइड एनी हिस्ट्री. आपको जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर साहब जो आते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, उनको बताना चाहिए कि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है. छिपाना कुछ नहीं. तो हम असेसमेंट कर पाते हैं कि आप किस रिस्क कैटेगरी में हो. अगर रिस्की केस है, ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, तो हम कंट्रोल करते हैं. अगर प्लान्ड केस है तो वी कंट्रोल. इमरजेंसी है तो वी टेक केयर, वी कैन हैंडल एनीथिंग. आपका बीपी हाई और आपको इमरजेंसी सर्जरी, तो वी कंट्रोल द बीपी एंड सब्जेक्टिव टू एनेस्थीसिया. और एनेस्थीसिया आज के जनरेशन में इतना सेफ हुआ है विथ एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम जो है, वर्क स्टेशन जो है, एजेंट्स. ट्रस्ट योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ट्रस्ट योर सर्जन, जस्ट लाई डाउन ऑन द बेड and the anesthesiologist will take care of you. Just lie down. Absolutely. It's that safe, Ronit. डॉक्टर नोएल, एनेस्थीसिया के बाद, एक सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया की वजह से कोई कंप्लेंट्स जनरल ऐसे होते हैं पेशेंट्स में? इन टूडेज एरा नो. इतना अच्छा ड्रग्स है, इतने अच्छे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है. जो पहले के ज़माने में होता था कि वॉमिटिंग होता था पेशेंट को, नॉशिया होता था. आई हैव हार्डली सीन एनी पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ नॉशिया, वॉमिटिंग या पेन. पेन इज द फर्स्ट दिस थिंग, यू नो, पेन रिलीफ. तो विद दिस ड्रग्स ये जो आप बोल रहे कॉम्प्लिकेशंस और ये जो होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर. Nowadays it has very low rate. In good centers, in good hands, in good experienced anesthesiologists. These youngsters are very good in anesthesia now. They are trained so well कि they control the nausea, vomiting, analgesia. तो बहुत कम इंसिडेंट्स है. आई एम टेलिंग यू, नो, डोंट वरी, टेल द पेशेंट नॉट टू वरी एट ऑल. सर, एक जनरल ऐसे लोगों में है मानना कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन सीजेरियन के लिए डॉक्टर के पास जाती है और अगर डॉक्टर उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शंस देते हैं जो कि यूजुअली एनेस्थीसिया के रहते हैं शायद, तो उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग पेन रहता है. इज इट कनेक्टेड विद द एनेस्थीसिया? बिकॉज दे ऑलवेज कंप्लेन, बिकॉज ये I know, I have also come across many female patients. Generally when you are pregnant, सब प्रेगनेंसी आता है तो बैक मसल काफ़ी वीक हो जाते हैं. प्लस तुमको अगर सीजर किया तो पीठ में इंजेक्शन देके स्पाइनल एनेस्थीसिया की डिलीवरी करते हैं, फिर वहाँ के उनको दर्द चालू हो जाता है. देयर इज नो रिलेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड बैक पेन, एब्सोल्युटली नॉट. मे बी
वीक पेन, आपको बैक पेन होता है क्योंकि आपके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं डिलीवरी के टाइम, पेरीपार्टम जो स्ट्रेचिंग होता है, और उसके बाद आपका बैक एक चालू हो जाता है इश्यू. So It is not related to anesthesia. okay, it is It is related because to of paraspinal muscle yeah. weakness. फिर उसको एक्सरसाइज करके आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. हाँ, एक्सरसाइज करके हम ठीक कर सकते हैं. इट्स ए टोटल मिथ एंड मिसकंसेप्शन. स्पाइनल एनेस्थीसिया कभी बैक पेन नहीं होता है, नॉट एट ऑल. 100% पैरास्पाइनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. योगा इज वेरी गुड. योगासन later on, to make your paraspinal muscle strong. What I used to do, I used to reassure them कि madam, this is not because, it is because you were pregnant and pregnancy के side effect है, वो muscle stretch हो जाते हैं. Then after that you have to take care of your back. डॉक्टर नोएल, जब भी किसी को पॉइजनिंग होता है या फिर स्नेक बाइट होता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाने तक हमें क्या करना चाहिए? Snake bite, of course, when there is snake bite, mind you, 90% of the snakes are non-poisonous. 90%? I tell you, 90% snakes are non-poisonous. The problem is the patient gets worried कि सांप काट दिया भाई मेरे को, मैं मर जाऊंगा भाई. नहीं होता है. Try to go to the nearest hospital whenever possible. One thing, when the snake bites you on the leg, try to close the circulation. बांध लेना चाहिए. बांध लेना चाहिए. And don't do anything. First aid अगर कर सकते हैं आप, सीखे first aid, उसको circulation बंद करें. You get some suction pump where you can put and remove the poison. But I would advise just tie some tourniquet sort of, close the circulation, go to the nearest hospital. If you are surviving to a hospital of snake bite, 100% you are going to survive. That means the snake bite, matlab snake non-poisonous. Even if it is poisonous, if you are surviving and reaching the hospital, you survive. My success rate when I treated snake bites, we had a lot of snake bites here where I practiced. 100% success rate I had with anti-snake venoms. There are two types of snakes actually, neurotoxic and vasculotoxic. Neurotoxic बोले तो आप पैरालाइज हो जाते हो, सांस बंद हो जाता है. vasculotoxic बोले तो आपको ब्लीडिंग चालू हो जाता है इधर उधर से. I had a lot of patients where I practiced. 100% success rate. So you don't have to worry. Reach the hospital, don't fear. Don't fear. आधे लोग परेशान हो जाते कि सांप काट लिया तो मैं मर जाऊंगा. Anybody can, panic तो हो जाएगा. Whenever you get bite by snake bite which is poisonous, you know कोबरा ने लिया, काट लिया भाई आपको. You have to go to the hospital. Russell viper, crate, these are poisonous snake. If a green snake catches you, mud snake catches you, they are not poisonous. So if somebody is having stroke, somebody is having heart attack, so पहले हॉस्पिटल पहुंचने तक हमें क्या ख्याल करना चाहिए? That is a very good question. I'll tell you now. Heart attack is very difficult for a common man to diagnose. You're talking heart attack is difficult. Chest pain आप बोल सकते हो, not heart attack. Many times chest pain, here pain, maybe because of acidity. But you have to rule out heart attack है क्या नहीं. So my advice is to the general public, if you are getting pain anywhere, here, precordial, either chest pain or that, go to your hospital and show your doctor and get an ECG done. There is 1%, 2% or 10% chance that you may have heart attack. क्यों हार्ट अटैक और एसिडिटी का पेन सिमिलर रहता है. राइट. हार्ट अटैक, मस्कुलर पेन, जॉइंट का इधर का पेन, एसिडिटी, ये सब मिमिक करते हैं एक दूसरे से. यू हैव टू डायग्नोज, डिफरेंशिएट. तो गो टू ए डॉक्टर, रूल आउट कार्डियक पेन. ईसीजी कर लो, डॉक्टर साहब ईसीजी करेंगे, कार्डियक एंजाइम्स करेंगे, बीपी चेक करेंगे आपका, और फिर रूल आउट करेंगे. अगर आप रिस्क फैक्टर में हो कि यू आर हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर है आपको, डायबिटीज है आपको, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, तो देयर आर हाई चांसेस आपको अटैक का सिम्टम्स हो सकता है. हॉस्पिटल पहुंचने तक हम क्या कर सकते हैं सर? एट द मोस्ट सॉर्बिट्रेट ले सकते हैं आप. सॉर्बिट्रेट इज अ वेरी सेफेस्ट मेडिसिन. जबान के नीचे रख देने का सॉर्बिट्रेट और हॉस्पिटल जा रहा है जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं. बिल्कुल. बाकी आई वुड नॉट एडवाइज टेकिंग एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, विदाउट रूलिंग आउट. डॉक्टर नोएल, एक टर्म आता है गोल्डन आवर. व्हाट डज इट मीन इन मेडिकल लैंग्वेज? देखो, ब्रेन को अगर ट्रॉमा होता है तो विद इन 4 आवर्स इफ यू ऑपरेट ऑन द ब्रेन, रिजल्ट्स आर ह्यूजली गुड, ह्यूजली बेटर. सेकेंड, स्ट्रोक होता है, इश्मिक स्ट्रोक जो बोलते हैं, ब्लड सप्लाई कम हो गया है.
ये क्या होता है सर? इश्यमिक स्ट्रोक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, वन इज इश्यमिक, वन इज हेमोरेजिक. इश्यमिक यानी ब्लड सप्लाई कम हो गया और तुमको लकवा मार गया. इज इट लाइक पैरालिसिस? या पैरालिसिस, हाँ लकवा मार गया. हाँ. सेकेंड इज हेमोरेजिक यानी ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया. यानी इधर ब्लीड हो गया तो ये साइड वीक हो जाएगा, इधर ब्लीडिंग हुआ तो ये साइड वीक हो जाएगा. जब इश्यमिक स्ट्रोक होता है, जहाँ ब्लड सप्लाई कम होकर स्ट्रोक होता है, वहाँ थ्रोम्बोलिसिस, ये नया टेक्निक है, रिसेंटली सिंस 10 years it has come up. There is one injection which we give. If you give that injection within 4 hours, there are high chances that you will recover from paralysis. वो clot dissolve करता है और paralysis recovery. And that, but you have to reach within 4 hours. Within 4 hours you have to get that injection. Maybe at the most stretch it to 6 hours, but the neurologist in a better condition to decide whether should I thrombolize him. Mainly strokes में बहुत useful है. That is why the term golden hour. Golden hour is, suppose this is take away message for your people. अगर लकवा मार गया, if you are feeling weakness, try to go to the nearest hospital. So that is the concept of golden hour. Sir, you have been working in this industry for so many years. Almost 28 years now. 28 years. But अभी भी लोगों में अगर ICU का नाम सुनते हैं, so what you find in general public कि लोग डर जाते हैं, और ऐसी कौन सी मिथ है जो आप डिबंक करना चाहते हैं? Putting a patient on ventilator is life saving. ये कैसा वेंटिलेटर कैसा रहता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं, जैसे किडनी फेल हो गया है तो तुम डायलिसिस पे रखते हो, राइट. रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो वेंटिलेटर पे रखते हो. Even now, sorry to disturb, but even now if somebody says कि अगर कोई वेंटिलेटर पे है तो लोग एक्चुअली समझ लेते हैं कि पेशेंट इज ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल. on the verge of- ये मिथ है. जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर माइंड कि वेंटिलेटर इज बैड, वेंटिलेटर पे डाला तो मरने वाला है. नॉट एट ऑल. पीपल हैव सेव्ड. कार्डियोजेनिक पल्मोनरी शॉक, यानी वेंटिलेटर पे डालो बचे. आई माई सेल्फ हैव सेव्ड सो मेनी पेशेंट इन माई लाइफ पुटिंग ऑन वेंटिलेटर. And I can be very vocal. Nobody can ventilate a dead patient. Patient may be brain dead, but a dead patient cannot be ventilated for 2 to 3 days. Not at all. और ये myth है. Okay. I'm not saying brain dead, okay? I'm saying dead patient. Brain dead patient can survive because that is what we do for organ transplant and all that. But a dead patient on ventilator, that is a myth which is wrongly circulated to defame my community. अच्छा रोनित, जस्ट कंसिडर एक केस सिनेरियो देता हूं मैं आपके सामने. बॉस में कोलैप्स हो गया, गिर गया इधर, अनकॉन्शियस, नॉट रिस्पॉन्डिंग. आप क्या करोगे बॉस? टेल मी व्हाट यू विल डू. मैं एम्बुलेंस को कॉल करूंगा. और बाद में क्या करोगे? CPR करते क्या करोगे फिर? उसके बाद क्या है? क्या कर रहे आप? व्हाट इज CPR? कैसा करते हैं CPR? बताओ मेरे को. सर आई नो कि वो चेस्ट ऐसे प्रेस करना रहता है, प्रेशर ऐसा कैसा ऐसा. तो आई थिंक वी हैव टू बी एम्बेसडर्स टू टीच पीपल बॉस. ओके. यू हैव टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर टू स्प्रेड माय गुड न्यूज. श्योर सर. आई टीच यू कि ऐसा हाथ पकड़ो, ऐसा करो एंड कीप इट ऑन द चेस्ट हियर. इधर लगाना एंड प्रेस स्ट्रेट लाइक दिस. यू प्रेस फॉर 90 to 120 times straight, हाथ straight ऐसा. No, not like this. Okay. Middle of the chest, press 90 to 120 times per minute. और 2 इंच compression चाहिए. 90 to 120 times per minute till the help comes. First is the ask for help. Call for help first. Second is just check whether the patient is conscious or not. Unconscious, not breathing, start your course. Continue till your help comes, till the ambulance comes. Till the help comes. You may save a life. Right, sir. So let's be an ambassador to make every citizen a lifesaver. Yes, sir. That is why we are making this podcast. कि ऐसे अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचे. And one final, मेरा ideology बोलना चाहता हूँ मैं आपको. You know what? For all happiness, mankind can gain is not in pleasure, but in freedom from pain. आप सोच के देखो ना. For all happiness, mankind can gain is not in pleasure, but in freedom from pain.
I'm Very, really very happy in my life being an anesthesiologist and a critical care. वी आर लकी एंड थैंक यू आप यहाँ पे आए, नया नॉलेज मिला। अगर आपको कुछ लाइंस बोलना हो लोगों के लिए तो आप यहाँ इस कैमरा में देख के हमारे पब्लिक के लिए बता सकते हैं सर। अपने माँ से, अपनी बीवी से और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से कभी कुछ छिपाना नहीं, महंगा पड़ सकता है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट हमारा ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, खुश रहिए।